Hello everyone, this is Mindrukor and I welcome you all to my channel. Earlier we have started our chapter of accounts, that was Introduction to Accounting, and that was the part 1. I'm going to upload part 2. In this part we're going to study something new, facts about accounting in a very good way, and I will also upload in notes. So let us start. We should know that accounting is an art of science. Art and science of what? Of identifying and measuring, recording, classifying, summarizing, systematic arrangement. So accounting is an art and science. It is an art and science of what? It is of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, systematic arrangement, and then analysis and interpretation of communication, of monetary transaction of business. So this whole is the definition of accounting. These are the steps of accounting, or summary of accounting, or the process of accounting, how accounting is done. So I told you that accounting is an art and science. But how it is an art? First of all, we need to know what actually art and science here refers to. So here, art is that branch of knowledge which requires application of skills, which requires one's creativity, which requires application of skills and one's creativity, plus it is perfected by practice and repetition. So all three are the requirements of art, or all three these are collectively known as art. Now we will notice one thing here, that in accounts also we require application of skills, one's creativity, imagination, and practice and repetition. Now in science, it is a branch of knowledge which requires these three things, that is principles, that are the rules, existence of cause and effect relationship, and universally accepted. So accounts, we will notice that accounts is also based on principle. It is also, there is existence of cause and effect relationship. It is universally accepted. There is a correction here. Actually, accounts is not universally accepted. It is somehow, some points of accounts are not purely accepted. So it is kind of impure science, as stated here. Accounts is kind of impure science because all the principles are not universally accepted. Some are accepted and some are not. So accounting is accountancy, we can say, is some total of art and science. Science actually not fully science, it's not pure science. We can say impure science plus art refers to account. Now we're gonna study the first step of accountancy, that is identifying and measuring. First of all, we'll go through identifying. We will know what kind of identification here we refers to. Identification here means transaction from the point of view of given entity. So identification means we're gonna note accountancy in accounts book. We're gonna identify the transaction. Transaction means the purchase of goods, the supply of goods in monetary terms. Monetary means in rupees, we can say, or in a currency, we can say, of transaction from the point of view of entity. That is, entity here refers to the business organization, business unit. So from that entity, from the business unit where you are working. For example, if I'm working as an accountant for two entities, that is A and B, part-time, like in morning I'm working for A, in evening I'm working for B. So जैसे कि मैं A में हूँ, I'm writing the accounts book. ठीक है, मुझे नोट करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को. जैसे कि इन रियलिटी ए ने सप्लाई किया गुड्स बी को. सो अकॉर्डिंगली ए इन मॉर्निंग अकाउंट्स बुक में मैं लिखूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी कि ए सप्लाइड गुड्स टू बी, दैट इज ए हैव सेल, ए हैव डन सेल, उसने बेचा है. इन इवनिंग व्हेन आई एम राइटिंग अकाउंटेंसी बुक और अकाउंटेंट्स
accounts for B institution, unit, business unit. According to B, it has purchased goods from A. So according to that business entity, I'm gonna write the accountant book कि उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, उसने सेल किया है, परचेज किया है, क्या किया है. जैसे कि हम एक इंस्टीट्यूट ले ले, रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि हम एक इंस्टीट्यूट ले ले और एक टीचर ले ले, दैट्स नेम इज राहुल. वी नो दैट इंस्टीट्यूट्स पे सैलरी टू द टीचर, लेट इट बी राहुल. So according to that institution, it is making an expense. But according to Rahul or the teacher, it's an income for him. उसकी ये कमाई है. So according to that business entity, उस business organization, उस business entity person भी हो सकता है कोई, तो उसके according कौन सी चीज हुई है, expense, income, purchase, sale. So I hope कि आप सबको clear है. सेकेंड स्टेप इज मेजरिंग. सो वी कैन मेजर, जो हमने आइडेंटिफाई किया था उसको मेजर करना है. उन ट्रांजैक्शंस को, उनकी अमाउंट को हमने मेजर करना है. मीन्स व्हाट डज इट मीन्स कि हमने उनको मॉनेटरी पैसों की टर्म में रिकॉर्ड करना है. बिकॉज ओनली ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज नोट हो सकती है. Accounting does not help to record qualitative information, that is honesty. We can record कि हमने उस person को, या हमारा कोई वर्कर है, हमने उसको इतने रुपीस देने हैं, we have to record this कि हमने देना है उसको. But we cannot record कि उसकी honesty क्या थी, उसकी वफादारी क्या थी. So this is what measuring is. So qualitative information को ना record करना is one of its drawback also. Now coming to our next step, that is recording. What is recording? Recording, it is a process of noting down that what is happening into a given entity. हमने identify कर लिया, हमने उसको measure कर लिया, अब उसको note down करना is recording. हम दो जगह पे note down करते हैं, एक है journal और एक है subsidiary books. जर्नल पे करते हैं फोकस. जर्नल क्या है? इट इज अ प्राइम बुक ऑफ रिकॉर्डिंग. जब हमारी ट्रांजैक्शंस कम होती है, मोस्टली ये तब होता है जब बिजनेस एंटिटी या बिजनेस यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटी हो, लेस हो, लार्ज स्केल पे ना हो, तब इसे हम यूज करते हैं. जब ट्रांजैक्शंस हमारी लेस हो. देन परचेज एंड सेल दो तरह से होता है. इसमें क्या होता है, नोट होता है एक शॉर्ट फॉर्म में, एक बहुत ही छोटी फॉर्म में नोट होता है. जैसे परचेज, दैट इज ऑन कैश, क्रेडिट. सेल कैश पर हुई है, क्रेडिट पर हुई है. मॉनेटरी टर्म्स में उसको नोट करना, या फिर रेंट कितना पे करना है, सैलरी कितनी पे करनी है, कमीशन कितना रिसीव हुआ है, कैश कितना डिपॉजिट है बैंक में. ड्रॉइंग हियर डजंट मीन्स कि टू ड्रॉ. ड्रॉइंग का मतलब है यहाँ पे अमाउंट विदड्रॉन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. ड्रॉइंग इज द कि पैसे विदड्रॉ करवाना, नॉट फॉर द बिजनेस यूज, इट इज जस्ट फॉर द पर्सनल यूज. देन सेल ऑफ स्क्रैप एक्सेट्रा. ये सब चीजें जनरल में रिकॉर्ड होती है ना. सब्सिडरी बुक्स क्या है? सब्सिडरी बुक्स इन ऑपोजिट यूज होती है. कहने का मतलब जब लार्ज स्केल पे हम यूज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हैं, वी नीड समथिंग ना, सो दैट सब्सिडरी बुक्स यूज होती है. 7 तरह की होती हैं अलॉन्ग विद जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर इज एक्चुअली अ जर्नल, बट जब हम उसको सब्सिडरी बुक्स में के साथ लिंक कर देते हैं, दैट इज प्रॉपर जर्नल प्रॉपर. 7 तरह की होती है. कौन सी होती है? परचेज बुक, जिसमें हम अपने सारे परचेजेस लिखते हैं. सेकंड सेल्स बुक, जिसमें सारे सेल्स लिखते हैं. थर्ड परचेज रिटर्न बुक. फोर्थ सेल्स रिटर्न बुक. फिफ्थ कैश बुक. सिक्स्थ बिल रिसीवेबल बुक. सेवेंथ बिल पेबल बुक, जो बिल हमने रिसीव करना है, जो पैसे हमने किसी से लेने हैं, जो पैसे हमने किसी को देने हैं. बट इसके अलॉन्ग हम एक और चीज नोट करते, दैट इज जर्नल प्रॉपर. है जर्नल की तरह ही है वो, बट इट इज अ रेजिड्यूअल. एक रेजिड्यू रह जाता है ना एक लास्ट में. जो चीज हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं वो जर्नल प्रॉपर में जाती है. इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नल, बट
linked to subsidiary books. Next step is classifying. So we're gonna go to the classifying. अब हमने क्लासिफाई करना है. क्यों क्लासिफाई करना है? क्योंकि जब हमने इनको रिकॉर्ड कर लिया, अब हम देखेंगे कि भाई परचेज हमने किया है, कुछ सेल किया है हमने, उसको ढूंढते फिरेंगे, हमें मुश्किल हो जाएगी ढूंढने में. सो हम उसको क्लासिफाई करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में लिखते हैं, ताकि हम उसको प्रॉपर एक प्रिसाइज फॉर्म में, एक स्पेसिफिक फॉर्म में, एक छोटी फॉर्म में लिख सके बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट लेजर अकाउंट. जब हम एक प्रॉपर लेजर होता है, लेजर here refers to the book, it refers to the you can say जगह, चीज जहाँ पर हम अपनी अकाउंट्स को क्लासिफाई करके लिखते हैं. तो पहला था आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया. दूसरा था हमारे पास मेजरिंग, जिसमें हमने मेजर किया मॉनेटरी टर्म्स में. थर्ड था हमारे पास रिकॉर्डिंग, हमने रिकॉर्ड किया एक साइड पे कि ये है जर्नल में. तो जर्नल से हम लेजर में लिखेंगे क्लासिफाई करके कि किस तरह से हमारे अमाउंट्स थे. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर की फॉर्मेट दिया हुआ है. लेजर यूजुअली इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है. एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट. डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वो हम बाद में देखेंगे. पहले आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे नोट करते हैं. ये साइड जो है वो सारी डेबिट साइड है, ये साइड जो है वो क्रेडिट साइड है. सो क्या होता है कि जैसे हमारी डेट, जिस डेट में हम लिखते हैं डेट प्रॉपर, कौन सी चीज़, पर्टिकुलर्स, क्या क्या लिया है हमने, क्या क्या चीज़ है, फिर उसकी अमाउंट. ये डेबिट वाली चीज़ आ गई. इसी यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा, जो वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा तब क्लियर होगा. अब जैसे कि मैंने बोला क्लासीफाई, उसमें क्लासीफाई क्या कर रहे हैं हम कि हमने क्या परचेज किया. यहाँ पे हम लिखेंगे सारा परचेज वाला, यहाँ पे सेल्स का, यहाँ पे रेंट, यहाँ पे सैलरी. यू कैन सी हियर आई हैव रिटन सैलरी, कमीशन, कैश. सो जब हम कुछ परचेज कर रहे हैं उसके क्या पर्टिकुलर्स हैं. जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी लिखेंगे, उसकी अमाउंट लिखेंगे. सिमिलरली क्रेडिट में और डेबिट में जैसे जिसको जैसे फिल करना है वो आपको थोड़ा बाद में जाके बहुत अच्छे से क्लियर होगा. फिलहाल आप एक ओवरव्यू ले लीजिए. देन सेल्स अकाउंट, जब हम टू रिकॉर्ड स्केल. रेंट, जब हम रेंट को रिकॉर्ड करते हैं. सैलरी की हमने इस पर्सन को या इस वर्कर को हमने सैलरी देनी है. कमीशन, जब हम कमीशन कोई ले रहे हैं, कोई कमीशन जिस बेस पे है वो. कैश, जब हम कोई कैश हमने दिया है, पे किया है, उससे भी नोट किया जाता है. ईच एंड एवरीथिंग इज नोटेड इन अकाउंट्स बुक. नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है समराइजिंग. समराइजिंग का मतलब होता है कि निचोड़ जी. सो समराइज करते हैं हम उस चीज को, निचोड़ निकालते हैं उस चीज का. प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट विच विल रिफ्लेक्ट बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हेल्प अस टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की कितना वो एक्यूरेट है. सो इसके लिए हमारे एक ट्रायल बैलेंस की एक शीट होती है जिसमें हम वो पर्टिकुलर्स नोट करते हैं. जैसे हमने देखा यहाँ पे परचेज अकाउंट था, परचेज का, सेल्स अकाउंट था, सेल्स का, रेंट का, सैलरी का, सब हम एक लिख लेते हैं. यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स होते हैं ना, उनकी अमाउंट लिखते हैं, उनकी बैलेंस फिगर निकालते हैं. बैलेंस फिगर मीन्स उनका टोटल निकालते हैं. वो जो टोटल अमाउंट आती है दैट इज रिटन हेयर. डेबिट की टोटल अमाउंट, क्रेडिट की टोटल अमाउंट, वो हम सब फिल करते हैं. जैसे बैंक में 21,000 टोटल डेबिट अमाउंट थी जो हमने बैंक को पे की है या बैंक से विड्रॉ की है. ये सब हम सब लिखते हैं. एक अलग कॉलम होता है डेबिट अमाउंट का, एक अलग कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट का. फिर उसका टोटल यहाँ पे लिया जाता है, ग्रैंड टोटल विच इज कॉल्ड. फिर आपको एक और एस्टॉनिशिंग चीज़ बताऊं कि डेबिट बैलेंस जो होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आता है. क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब हम आगे जाके अपनी फर्दर चैप्टर्स में या फर्दर टॉपिक्स में हम क्लियर करेंगे. सो बुक ऑफ अकाउंट्स एज्यूम टू बी एक्यूरेट एटलीस्ट अर्थमेटिकली. सो हमें पता लग जाता है कि हाँ हमने सही तरह से करेक्ट किया है
क्योंकि अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा मीन्स कुछ गड़बड़ हुई है, या तो नोट अच्छे से नहीं किया गया या कोई प्रॉब्लम हुई है, मीन्स हमारी अकाउंट्स की बुक में कुछ हमने गलत लिखा है। एक और चीज़ बता दूं, हम इसमें डबल एंट्री करते हैं डेबिट बैलेंस की, क्रेडिट बैलेंस की। दिस इज नोन एज डबल एंट्री, डबल एंट्री। नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है मैंने, डेबिट की अमाउंट्स है, क्रेडिट की अमाउंट्स हैं, इक्वल आ रही हैं, वी कैन सी। सो दिस इज वन ऑफ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप और एग्जाम्पल्स चेक कर सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, दैट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, मेजर कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर लिया। अब उसकी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिससे क्या होगा, हम इंटरप्रेट कर पाएंगे, हम कम्युनिकेट कर पाएंगे हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। व्हाट डज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट डू? ये प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये हमारा जो बिजनेस एंटिटी है, हम जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा बिजनेस जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या हमारे एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, वो आपको बाद में बताऊंगी। लाइक प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। नाउ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे गौर करते हैं। एक साइड होता है पर्टिकुलर्स, एक साइड होते हैं अमाउंट्स, दूसरी साइड पे पर्टिकुलर्स अमाउंट्स। ये जो पर्टिकुलर्स होते हैं दैट इज फॉर एक्सपेंडिचर, ये जो पर्टिकुलर्स होते हैं दैट इज फॉर इनकम। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं कि हमारी क्या इनकम का वो प्रॉपर, एंड देन अमाउंट। और ये चीज जरूर फरमाएं कि बिजनेस या कोई भी चीज हम बिजनेस कर रहे हैं दैट इज मेंट फॉर प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब होता है? जब हमारी इनकम जो है दैट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हमारे खर्चे ज्यादा है रेदर देन जो हम कमा रहे हैं, ऑब्वियसली वी विल गो इन लॉस। तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहा है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, वेयर वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग। इसी के साथ होती है एक बैलेंस शीट, जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स लिखते हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होती हैं? एनीथिंग विच हैज चार्ज ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ बिजनेस। जो लायबल है, लाइक जो चीज को हमने, like we have to pay something, we have to give something, so that is a kind of liability. assets हो गए एनीथिंग ओन्ड बाय अस, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, कैश हो गया। कुछ दो तरह के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट। फिक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरीज हो गई। करंट एसेट्स जैसे कि कैपिटल, लाइक कैश हो गया, ये सब हमारे पास कम समय के लिए होते हैं, दैट इज करंट एसेट्स। लायबिलिटीज एंड एसेट्स जो है हमें बाद में जाके ज़्यादा क्लियर होंगे, बिकॉज जैसे ये टर्म ज़्यादा यूज होते जाएगी हम और ज़्यादा इसको जस्टिफाई करते जाएंगे। लायबिलिटीज हम लिखते हैं। लायबिलिटीज में आपको बता दो दो तरह की होती है, एक कैपिटल, एक आउटसाइड लायबिलिटी, जो वो भी हम आगे जाके रीड करेंगे। लायबिलिटीज की अमाउंट लिखी जाती है, एसेट्स की अमाउंट लिखी जाती है, उसको कंपेयर किया जाता है, और दिस ऑल इज डन कि बता सके कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। Thank you so much everyone for watching my video. If you like it, please press the like button and subscribe to my channel. Click the notification bell for more such videos. I will upload Accountants Part 3, Introduction to Accounting, by tomorrow.